Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. I hope you all are fine. Today we'll solve questions from assignment number 3 from the chapter quadratic equations. Again I have to say that I don't know what is the problem with you all boys and girls. Either you are not solving the assignment or maybe you are not sharing your problems with me, or maybe you have solved all the questions from the assignment. If the third option is correct, then this is the best. And if you are not sharing your problems with me, or you are not solving assignment, this is not expected from you all. Okay. So I'm just selecting by my own side some questions from assignment number 3. I hope according to me. So question number first, B from assignment number 3. I am writing the question here. This question is already been solved by the method factorization, but today we will solve this quadratic equation by quadratic formula. 2a square plus 5ab plus 2b square. I hope you remember this question is solved in the previous part by factorization method, but now we will solve this formula, this quadratic equation by factorization method, quadratic formula. Okay. So how we will find roots of a quadratic equation by quadratic formula? What is the formula? The formula was, I hope you all remember this formula. X is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2 times a. What are a, b and c? ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजें चेंज कर लेनी है, क्योंकि फॉर्मूले में जो ए बी सी यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन में भी ए बी यूज हो रहा है ना. फॉर्मूला थोड़ा सा एडिट कर लीजिए. फॉर्मूले में है ना स्मॉल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट की यूज करने के बजाय कैपिटल लेटर्स यूज कर लीजिए. ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, बात वही है. So we will write the values of a, b and c for this quadratic equation. And what is the value of a here? 9. What is the value of b here? Minus 9 times a plus b. And what is the constant term here? C is equal to 2a square plus 5ab plus 2b square. I hope आपको ये सारी बात समझ में आ रही है. Now what we will do now, we will put all these values in this equation, in this formula. Okay, so I'm doing just here. X is equal to minus this minus is from the formula. And what is the value of b? Value of b is minus 9 times a plus b. देखिए फोकस, पेशेंस, अटेंशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में. बस शांत रखिए खुद को, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी बन रही है, कितना बल्कि हो रहा है क्वेश्चन. दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम. आपको वैल्यूज पुट करनी है बहुत प्रॉपरली मैथमेटिकल वे में आपको वैल्यूज पुट करनी है. ब्रैकेट सही यूज करना, स्क्वायर कहाँ लगाना है ना. जब आप यहाँ सॉल्व करो तो पूरा अटेंशन नहीं आना चाहिए. बी स्क्वायर विल बी माइनस 9 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 9. What is the value of c? 2a square plus 5ab plus 2b square upon 2a, and the value of a is 9. अब देखिए जब एग्जाम में आप वैल्यूज पुट करने के बाद इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनाते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट 70-80% स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा मेंटली ना डाउट में आ जाते हैं कि यार ये सही बनाया मैंने, ये इतना बड़ा बन गया सही बना है क्या, मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा. तो इस तरह के डाउट्स आने लगते हैं दिमाग में, इस तरह के हेजिटेशंस और खुद पर शक होने लगता है. और ये क्यों होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने कभी ऐसा फेस नहीं किया, आपने खुद से कभी ऐसे बनाई नहीं इक्वेशन, कभी से सॉल्व नहीं किया, इसीलिए आपको डाउट हो रहा है. और जैसे ही मन में डाउट आएगा, आपको आता भी होगा तब भी आपसे मिस्टेक होगी. एंड दिस इज द प्रॉब्लम.
इसीलिए हमेशा टीचर्स कहते हैं, सीनियर्स कहते हैं कि प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस किया। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना देखे रहेंगे, जितना देखे रहेंगे आप एग्जाम में घबराएंगे नहीं कि अरे ये सब तो लगाया हुआ है यार, ये वाली बात आती है। आप उतना कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे इतनी प्रैक्टिस किए रहते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर कोई क्वेश्चन उनको नहीं भी आ रहा होता है तब भी वो 2-3 मिनट सोचने के बाद उसको लगा देते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हमेशा वजह ये नहीं होती है कि वो बहुत तेज है पढ़ने में या उनका दिमाग है, उनका IQ बहुत तेज है, नहीं, हमेशा वजह ये नहीं होती है। ज्यादातर केसेस में वजह ये होती है कि वो कॉन्फिडेंट बहुत है, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की, उनको विश्वास है अंदर ही अंदर कि हाँ 1-2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगी तो मुझसे ये क्वेश्चन डील हो जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा अपने आप को चांस देते हैं। और ये क्यों है, वो क्यों चांस दे रहे हैं अपने आप को? बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कहां से है? प्रैक्टिस। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स ओके, खैर विल, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी सिंपली एज 9 टाइम्स a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, so ये minus square will be positive, 9 square will be 81, and what we can say, एक काम कर सकते हैं हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, काम कर सकते थे हम लोग, यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, है ना। चलो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9। अभी मैं 4 और 9 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 का नहीं करते। देखिए क्यों 9 कॉमन लेना है, देखिए अगर मैं ये 9 और 4 मल्टीप्लाई कर लूं 36, तो मुझे 36 का मल्टीप्लाई 2 में, 36 का मल्टीप्लाई 5 में, मुझे कोशिश ये करनी है कि कोफिशिएंट्स बहुत बल्कि ना बने। मुझे ज्यादा टेबल पढ़नी पड़ेगी, 36 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना 36 में, इट विल टेक टाइम, है ना। मैं नहीं चाहता कोफिशिएंट्स बहुत बल्कि जाए। अब जैसे यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर 81 आएगा, अब 81 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता। क्या, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या कुछ सिंपल नहीं हो सकता क्या, तो मैंने देखा कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 कॉमन ले सकते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट होगी क्या बाहर आ जाएगा, 3, तो इसलिए मैंने अभी 9 को छोड़ रखा है। 4 कॉमन नहीं ले सकता मैं, तो 4 का तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 4 इनटू इनसाइड दिस ब्रैकेट। 4 2 जा 8a स्क्वायर प्लस, है ना, दिस वन इज स्क्वायर, 4 5 जा 20 टाइम्स ab प्लस 4 2 जा 8b स्क्वायर, ओके, अपॉन, सो 2 इंटू 9, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं यहां से 9 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से 9 कॉमन ले ले रहा हूं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में होगा ये, बट आपको तो दिख रहा है 9 यहां से कॉमन ले ले रहे हैं। इसमें 9 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9, और 9 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 9 स्क्वायर रूट होके बाहर आएगा ना, तो 3 हो गया, ओके। यहां पर 9 था, वो कॉमन ले लिया मैंने, यहां पर 81 था, उसमें से 9 बाहर ले लिया, यहाँ 9 बचा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या बाहर आ गया, 3। ओके, तो यहां पर 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे हम, ओके। सो मैं ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, मैं लेकिन यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां से 3 कॉमन लिया, यहां से भी 3 कॉमन लिया, यहाँ 3 बचेगा, और वो 3 से मैंने 9 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, ओके। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, चीजें सॉल्व कर सकता हूँ। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल इरेज, आई होप यू आर ऑल डन। क्वेश्चन की लेंथ पे आपको कभी नहीं जाना है, जस्ट काम डाउन, एकदम रिलैक्स रहिए, और जो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है बस वो कीजिए। मैथमेटिकली आपको कुछ गलत नहीं करना है, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा शॉर्ट, आपसे क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा। सो 9 टाइम्स, अब मैं इस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab माइनस 8a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 2 3 6. So x is equal to 3 times a plus b plus minus square root of
ओके, इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9a² आएगा, ये -8a² आएगा, 9a² -8a²। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये a² बचेगा। दिस वन विल बी 9b²। यहाँ पर ये -8b² होगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, दिस विल बी -8b², दिस विल बी 9b², 9b² -8b² प्लस b²। आई होप है ना, ये एकदम ना समझने जैसा कुछ नहीं है यार। 9 2 जा 18ab और ये -20ab, 18ab -20ab -2ab बचेगा। देखिए कितना सिंपल हो गई चीजें। अभी तक ये एक्सप्रेशन कितना बल्कि था। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, ये तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये a - b होल स्क्वायर है सर। ये तो इतना रटा हुआ है हमारा क्लास, है ना, क्लास 8 से 9th में, है ना, ये इतना रटा हुआ है, ये सपने में भी दिख जाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर बोल देंगे हम तो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस माइनस, और स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 6। ये स्क्वायर, पहले हमने स्क्वायर किया फिर स्क्वायर रूट लिए तो a माइनस बी बचेगा। ओके, तो एक बार प्लस साइन के साथ एंड एक बार माइनस साइन के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट जीरो अल्फा इज इक्वल टू, फर्स्ट जीरो अल्फा इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन के साथ ले लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर ले, 3a प्लस 3b प्लस a माइनस बी अपॉन 6। बताइए 3a और a क्या आ जाएगा, 4a, 3b माइनस बी क्या आ जाएगा, 2b, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए ना, 2a प्लस बी अपॉन 3। ये फर्स्ट रूट आ गया। सेकेंड रूट माइनस साइन के साथ निकालेंगे, जिसको हम बीटा कहते हैं, बीटा इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, ये 3 का मल्टीप्लाई किया, माइनस जब लेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये माइनस a और माइनस माइनस प्लस, माइनस a प्लस b अपॉन दिस विल 6। 3a माइनस a, ये 2a हो जाएगा, 3b प्लस b, ये 4b आ जाएगा अपॉन 6। ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, आई थिंक 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 2b अपॉन 3, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, नीचे 6 में डिवाइड कर दिया। सो ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया और ये हमारा सेकंड रूट आ गया फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि दी हुई थी। मतलब प्रैक्टिस की चीज है, अगर आप टाइम लेकर के लगाएंगे, धीरे 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 जब आपसे सही होने लगेगा तो स्पीड भी, पेस भी बनने लगेगी, ऐसी बात नहीं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आया था, फैक्टराइजेशन से नहीं। मैंने फैक्टराइजेशन से दे दिया था, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आया था। ओके, आई एम रेजिंग दिस। So next question we will try second question number first का E part, x square minus 2ax minus 4b square minus 4a square। तो फिर अगेन सेम चीज है, a की वैल्यू हमने लिखी 1, b की वैल्यू हमने लिखी -2a और c की वैल्यू हमने लिखी -4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन सब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। What is the formula for solving for finding roots of a given quadratic equation? X is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac। आपको याद है ये रूट के अंदर वाले टर्म को क्या कहते थे? इस रूट के अंदर वाले टर्म को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। सो x is equal to माइनस b की वैल्यू क्या दी हुई है, -2a स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू -2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर आ जाएगा। a की वैल्यू क्या दी हुई है 1, c की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस, अब ये वाला माइनस यहां पे मैं लिखूंगा, देखिए -4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे। ब्रैकेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स a माइनस माइनस प्लस
ये 4a², ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4b² माइनस a²। मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझको 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, अपॉन 2। 4 मैं कॉमन लूंगा, यहां से 4 कॉमन आ गया, यहां से 4 कॉमन आ गया, लेकिन 4 जब बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट होके बाहर आएगा, तो बाहर होके क्या बन गया वो 2। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा भाई साहब, 2 कॉमन ले लिया, यहां से भी सर 2 कॉमन ले लिया, और उस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया। ऐसे कर लो, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई विल इरेज। आई होप यू आर डन। So what will be the next step? So x is equal to हो जाएगा a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4b² माइनस a²। अरे ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में तो 1 है, तो अपॉन में लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बचा क्या, 4b², 4 का स्क्वायर रूट 2, b² का स्क्वायर रूट 2b, 2b आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, b² का स्क्वायर रूट b, तो अल्फा फर्स्ट रूट, a प्लस 2b प्लस साइन के साथ, और बीटा सेकंड रूट, a माइनस 2b माइनस साइन के साथ। ये रहे हमारे 2 रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। These questions are already asked in your CBSE board examination. Okay, so we will solve next question. Question number first, which one I will say, I mean f वाला भी ठीक दिखाई दे रहा है, चलो f कर लेते हैं। I ठीक है, f कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का f पार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज f? x² प्लस 6x माइनस a² प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने क्वेश्चन अभी भी नहीं सॉल्व किया है, या अगर स्टूडेंट के पास असाइनमेंट ना हो, तो हमेशा थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपने जिस तरीके से लगाया है, मैं जिस तरह से लगा रहा हूं, सेम है या नहीं, स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फॉर्मूला लिखना मेंशन करना भूल गया या भूल गई, है ना। अगर सर ने जैसे लगाया वैसे ही मैंने लगाया तो फुल मार्क्स है, बात खत्म। ओके, सो फटाफट से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 एंड c इज माइनस टाइम्स a² प्लस 2a माइनस 8। ओके, x² प्लस 6x प्लस a² प्लस 2a माइनस 8। ओके, सबसे लिखा हुआ है। Okay, so what is the formula for finding roots of a given quadratic equation? X is equal to minus b plus minus square root of b² minus 4ac upon 2a। ये काम करना है, वही चीज है। x is equals to minus, what is the value of b? 6 plus minus 6 का स्क्वायर 36 minus 4, what is the value of a? 1, what is the value of c? माइनस में है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे a² प्लस 2a माइनस 8 अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू तो 1 है। यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है कि नहीं? 36 को मैं क्या लिखूंगा? 36 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 9, 36 है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 36 का एक फैक्टर 4 है, तो मैं 4 लूंगा कॉमन। ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो स्क्वायर रूट होकर क्या आ जाएगा 2। यहाँ क्या बचेगा 9 प्लस, ये तो 4 हटी गया, बचा क्या a² प्लस 2a माइनस 8 अपॉन 2। ये तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा, है ना। ये समझ आ रहा होगा। चलो यहां कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -3 -3 प्लस माइनस, ये तो कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा 1, a² प्लस 2a प्लस 1 अपॉन 1। तो अपॉन तो लिखने का मतलब ही नहीं, अपॉन में तो 1 बचेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये तो हम लोग खूब राम राम जपे हैं क्लास 8 से। a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस 1 होल स्क्वायर है सर।
a प्लस वन के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस वन आ जाएगा। सो पहला रूट प्लस साइन के साथ -3 प्लस a प्लस 1, देखिए क्या आ जाएगा ये a -3 और प्लस 1 -2। दूसरा रूट माइनस साइन के साथ -3 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा जब ब्रैकेट के तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस प्लस -1 हो जाएगा। सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -a -4। So these are the two roots for the given quadratic equation. I hope आपको समझ में आया. Just take a screenshot if you want. Okay. एक और लास्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन सभी अच्छे हैं बट फिर भी मुझे सेलेक्टिव होना पड़ रहा है. अब आपने तो कुछ पूछा नहीं. फर्स्ट का आई मैं सॉल्व कर रहा हूं. द क्वेश्चन इज 12abx square 12abx square minus 9a square minus 8b square x, okay, minus 6 times ab is equals to 0. This is the quadratic equation. 12abx square minus 9 times a square minus 8b square x minus, okay. So what are the values of coefficients? A is equal to 2 times AB, है ना. B की वैल्यू क्या है? minus 9a square minus 8b square, and what is the value of C? minus 6 times AB. मेक श्योर कि आपसे A, B, C के वैल्यूज सही से आप लिख रहे हो. ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में हम यही गलत लिख दें. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मेक श्योर क्या फॉर्मूला लिखना ना भूलें. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. हमेशा फॉर्मूला डिक्टेट करते रहिए ताकि आपको फॉर्मूलाज याद रहें. सो x इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b. ये माइनस फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू क्या है? माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, जो कि b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, बी स्क्वायर. बिल्कुल घबराइएगा नहीं ऐसी हो कि इसका स्क्वायर करना है. माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा. बचाइए 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is 12ab. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c is minus 6ab. minus 6ab upon 2a. What is the value of a? 12ab. So this is what we have to deal with. Okay, मुझे हम लोगों को इससे डील करना है, इन महाशय से जो लंबे चौड़े दिखाई दे रहे हैं. So I can think, I think एक स्टेप और हम कर सकते हैं. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. This will become 9a square minus 8b square plus minus square root of, okay, what say, I mean, यहाँ तो हमसे कुछ कॉमन आ नहीं रहा. देखिए अब हमारी यहाँ मजबूरी है कि हमें इन सबका स्क्वायर करना पड़ेगा. 9 का स्क्वायर 81. ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे तो इन सबका स्क्वायर करना पड़ेगा. 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर करेंगे a टू द पावर 4. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत सिंपल वे में लिख रहा हूं. 9a स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a b. अब ये तो समझ में आना चाहिए. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, आई होप. ओके, 4 इंटू 12 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 24, 144, 288. This will become 288 a square b square. हाँ ठीक है. कैसे किया हम लोगों ने? 6 4 जा 24. ये माइनस माइनस प्लस हो गया. 6 4 जा 24. 24 इंटू 12 करना था
तो 24 को लिख लो क्या 12 इंटू 2, 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए 144 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। थोड़ा सा ये सब, अब अगर आप इन छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के लिए कैलकुलेटर उठा लोगे तो कभी मल्टीप्लिकेशन दिमाग में होगा नहीं जल्दी से। सो कोई भी उल्टी सीधी आदत बनाने से पहले 2 मिनट सोचिए, है ना। ये नहीं कि हम बात बात में कैलकुलेटर उठा लें या बात बात में गूगल से पूछ लें, ये सब आदत से थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत अर्जेंसी हो, नेसेसिटी हो तो ये हमारी हेल्प करने के लिए ही है, आप इनका यूज कीजिए, बट नहीं जनरली नहीं पूछना चाहिए। 12 to 24 टाइम्स AB। ओके, आई नीड सम स्पेस, आई विल इरेज ऑल दिस थिंग्स। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, है ना। अब हम लोग देखेंगे इस बात को कि कैसे इसको आगे हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, देखिए यहां पर x इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ओके। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करें, देखें 9 2 जा 18, 18 8 जा 144, तो ये आएगा 144a स्क्वायर b स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 144a स्क्वायर b स्क्वायर। समझने वाली बात है ये ये 144a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 288a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, बचेगा प्लस 144a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए धीरे धीरे करके चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपको ये समझना है ना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। सिर्फ इतना सब आपको बस समझाने के लिए कि किसी स्टूडेंट को बिल्कुल अगर आइडिया ना हो तो उसे भी समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। वरना इतना लंबा जाएगा नहीं, हम लोग जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस 144 को क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना, ये 2 9 8 करके, ऐसे आप लिखिए इसको, प्लस 2 इंटू 9a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर अपॉन 24ab। वही चीज है, वही 144a स्क्वायर b स्क्वायर को ही ऐसे लिखा मैंने, 2ab करके लिखा बस। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला बन गया सर, है ना। तो मैं इसको यही इरेज करके लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किसका बन रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है यार। अब बड़ा आसान काम है, ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, हट जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अगर आपके साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा हो ना कि चीजें सिंप्लीफाई हो रही हो, तो इसका मतलब आप मैथ्स में सही ट्रैक पर हैं, ठीक है। मैथ्स कहीं ना कहीं सॉल्व करते करते बता देते कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 24 टाइम्स ab। अब काम बड़ा आसान है, एक बार प्लस साइन एंड एक बार माइनस साइन, विल गेट अल्फा एंड बीटा एंड दैट विल बी ऑल। सो अल्फा इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस साइन के साथ हम ले रहे हैं, जब हम प्लस साइन के साथ लेंगे तो आप देखिए माइनस 8b स्क्वायर और प्लस 8b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 18a स्क्वायर अपॉन 24ab। अब आपको ये समझ में आना चाहिए यार, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ये एक a कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3a अपॉन 4b। इतना प्यारा सा रूट आ रहा है। सेकेंड जीरो, बीटा इज इक्वल्स टू, माइनस साइन लेंगे, ये माइनस 9 स्क्वायर और ये प्लस 9 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस, माइनस 8b स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर आएगा अपॉन, ये सब बहुत अच्छी चीज होती है। प्लस के साथ लेने पर b वाला टर्म कट रहा था, माइनस के साथ लेने पर a स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है। ये सब बताता है कि सही जा रही है चीजें, ओके। माइनस 8b स्क्वायर और माइनस 8b स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर अपॉन 24ab। सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, एक b कैंसिल हो जाएगा हमारा एंड वी विल गेट आवर सेकेंड रूट एज माइनस 2 टाइम्स b अपॉन व्हाट इज 3a। दिस इज आवर सेकेंड रूट। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस रखते हुए, है ना, क्वेश्चन पर फोकस करते हुए अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे
डिमोरलाइज नहीं होंगे, गलत हो रहा है फिर ट्राई करेंगे, गलत हो रहा है फिर ट्राई करेंगे, शांत रखेंगे अपने आप को, कभी अपने बारे में अपने मैथ्स के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो जरूर आपको मैथ्स आने लगेगी। मैथ्स कभी भी मार्क्स लाने के लिए या हीरो हीरोइन बनने के लिए कि नहीं मैं सॉल्व करके सबसे आगे रहूंगा, मैं सबसे अच्छी मैथ्स जानने वाली क्लास में बनना चाहती हूँ, ये सब सोच करके, ये सब मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर के। मैथमेटिक्स मस्ट बी अ फ्रेंड, ठीक है, कभी वो जीतेगी, कभी आप जीतेंगे। आप जितना मैथमेटिक्स के साथ फ्रेंडली रहेंगे उतना ही वो आपको सपोर्ट करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको हमेशा, जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं 11th में इन फ्यूचर, तो उन्हें ये सारी बातें बहुत बहुत काम आएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप मैथ्स के साथ जितना जिद्दी होंगे, मैथ्स आपसे ज्यादा जिद्दी है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। आई होप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे हों। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए।